Good morning, friends. We are back with one more video lecture. I think you are knowing that last time when we met in the last video lecture, we were doing chapter circles, chapter number 10. Right? We have already completed 2-3 chapters before it. We are into this chapter now, circles. Dear students, as you know that there are two exercises, 10.1, 10.2. There are two exercises. Now, out of these two exercises, we have completed the first one and we are almost at the end of the second one also. Because there were 13 sums. Only 3 were remaining last time. And they are question number 9, question number 10 and question number 12. If 3 ho jaye, then we are done with this chapter also. Okay? So I am writing here number 9, number 10 and number 12. These are the 3 sums that are only left in this exercise. Out of which we are doing number 9 right now and number 12 right now. Question number 10 is part of your homework. Only one. I am giving you the homework in the starting of the lecture. That only one sum in the homework today. Reason is chapter is getting over. And why this 10th number is in homework? Because it is 90% same like question number 9. Okay? 80 to 90%. Only few 2, 3, 4 steps more you need to do at the end. जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक ऐसा था कि ऑलमोस्ट 2 सम सेम थे. I done one, I given one to you. Okay, so similarly, if you'll understand number 9, you can easily do number 10. So number 10 is in your homework. Okay, 9th and 12th we are doing it right now over here. Now tick mark this number 9 because question number 9 is very important one. It has been asked in the examination so many times. So question 9 is very important one. Okay, so tick mark this number 9. I am reading question number 9 for you. Okay, question number 9 says, in the figure 10.13, मतलब जो ये फिगर बनाया है मैंने वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये ज्वाइन नहीं किया हुआ है OC, बाकी पूरा फिगर गिवन है. So in the given figure 10.13, xy and x dash y dash, xy मतलब ये लाइन, x dash y dash मतलब ये लाइन, are two parallel tangents. So we can see they are two parallel and they both are tangent. This tangent is touching at the circle P and this tangent is touching the circle at point Q. So they both are parallel tangents. With center O, circle का center O है obviously. Another tangent, अब एक और tangent है, third one. Another tangent AB with point of contact C. एक और tangent है AB with point of contact C. Intersecting XY at A and X dash Y dash at B. ये वाला tangent XY को जहां कट कर रहा है वो point A है और इसको जहां कट कर रहा है वो पॉइंट B. ये सब लिखा हुआ है. So even if the figure is not given, we can draw the figure. But it is good that written part is also there and figure is also there. So this is the figure. And what is the target now? Target is prove that angle AOB is 90 degree. AOB. This one. It is 90 degree that we need to prove. So let's start. As you people know that we write the answer in 3 parts: data, to prove and proof. So first of all, data. Data is always available in the question. Like x, y and x dash y dash are parallel lines and AB is also tangent with point of contact C. 2 tangent हैं xy और x dash y dash जो दोनों parallel है. तीसरा tangent है AB जिसका point of contact C है. Okay, तो ये डेटा है, इतना ही. Target, so to prove angle AOB is 90 degree. So now let's start the proof.
अब प्रूफ कैसे करेंगे? सी दैट प्रॉपरली। स्टेप तो आपको समझ में आ जाएंगे, इट इज नॉट अ बिग थिंग, मेन थिंग इज लॉजिक. You must understand the logic what we are doing. Okay, so first of all, in the answer you need to join this to OC. We need to join OC. Why? There is a reason. Reason is because of this OC there are 4 same type of triangles will be made. 1 2 3 and 4. 4 एक जैसे triangle बनेंगे and we need to play with 2 triangles and we need to use the congruence shortcuts. Okay, so for the facility or the betterment I have given the names to angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. ये 4 एंगल जो बन रहे हैं उनको 1 2 3 4 नाम दे दिए ताकि बहुत बड़े बड़े नाम लिखने ना पड़े. टारगेट क्या है? एंगल AOB इक्वल्स टू 90. अब AOB अगर पिक्चर में देखा जाए फिगर में यहाँ पे तो कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है? वो 2 और 3 मिला के, look at 2, look at 3, if you add both 2 and 3 you will get the target angle. So what is our target? 2 plus 3 मिला के ये पूरा जो एंगल है that should be 90. This is our target. Okay, so see what we are doing. It is very simple, but if you understand the logic, if not then it is very difficult. See what I am doing. First of all I am taking these 2 triangles. So in triangle OPA or even these 2 triangles, both are same, कोई भी लें. So in triangle OPA, OPA means this one, OPA, ये वाला triangle. And triangle OCA, OCA, that means this one. So this triangle and this triangle, ऊपर के 2, उनमें congruence दिखाने की कोशिश करें. 3 combination ढूंढें. OP equals to OC. OP equals to OC. रीजन दोनों रेडियस है. OP भी रेडियस है, OC भी रेडियस है और एक ही सर्कल की रेडियस है. So both will be same. Next is AP equals to AC. AP equals to AC. Logic is theorem 10.2. Just recall what was theorem 10.2. क्या कहता था? एक सर्कल हो, एक बाहर वाला पॉइंट हो, उसमें से अगर 2 टेंजेंट बनाए जाए they both will be of equal length. So here is the outside point, external point A. Here is the circle. So AP and AC ये 2 टेंजेंट है, इसलिए AP equals to AC. थर्ड कॉम्बो AO equals to AO. This AO वो इसमें भी है, फर्स्ट ट्राइंगल में और सेकंड ट्राइंगल में भी है. So we got 3 combinations and all 3 are sides. So by using theorem SSS rule का इस्तेमाल करके we can say that triangle OPA and triangle OCA both are congruent. This triangle and this triangle are congruent. लेकिन तो क्या? So what? Congruent दिखा के क्या मिला हमको? Congruent दिखा के ये मिला कि angle 3 जो इस triangle का हिस्सा है और angle 4 जो इस triangle का हिस्सा है, they both will be same. Okay, they both will be same. तो ये फायदा होगा एक हमको. So angle 4 and angle 3 are same. वही मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे. Equation number 1 दे दिया इसको. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. ऐसा ही दूसरी बार. अब इन 2 ट्राइंगल्स के लिए, लेकिन लिखना नहीं, सिर्फ बता देना है. Similarly, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट. रीजन चाहे तो लिख सकते हैं आप. अगेन द सेम रीजन कि हम यूज करेंगे SSS का. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इस पे से क्या मिलेगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. यहां भी लिखना और लिख सकते हो CPCT. Here also you can write the reason was CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So 1 and 2 are same, 3 and 4 are same. 1 and 2 are same, 3 and 4 are same. टारगेट क्या था अपना? ये 2 और 3 मिला के, सिर्फ 2 और 3, 1 और 4 का कोई काम नहीं है हमको. 2 और 3 मिला के it must be 90. Now let's see what we are doing. So याद रहा पहला पार्ट क्या था? इन 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस दिखाना ताकि 3 और 4 सेम हो जाए. दूसरा पार्ट
इन दोनों के लिए ऐसे ही लिख देना सिमिलरली, ताकि 1 और 2 सेम हो जाए। अब आखिरी पार्ट, थर्ड पार्ट जो है कि लुक एट द फिगर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 4 एंगल मिला के आधा चक्कर पूरा कर रहा है, हाफ सर्कल। सो एडिशन विल बी 180। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, राइट? फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट। नाउ 1 और 2 तो सेम है, तो किसी भी एक को लिखो, मैंने 2 को लिखा, 2 टाइम्स एंगल 2। 3 और 4 सेम है, किसी एक को लिखो, मैंने 3 को लिखा, 2 टाइम्स एंगल 3। क्यों इन दोनों को लिखा? बिकॉज फाइनल टारगेट में उन दोनों की बात करनी। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, सो 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बाहर जो ये 2 लिखा है उसको उस साइड लेके जाए, इट विल गो इन डिवीजन। सो 180 बाय 2, सो इट विल गिव यू 90। सो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 90। जॉब इज डन। और 2 प्लस 3 का ही नाम है AOB। 2 प्लस 3 इनको मिलाएं, you will get AOB. So this is was our target was angle AOB equals to 90. Question is done. Okay, so this was question number 9. Now the question number 10 which I am giving you in homework, as I said, it is again as similar to this one. उसमें भी मैं आपको हिंट यही दे रहा हूं कि शुरुआत ऐसे ही करिएगा, पहले फिगर बनाइएगा, फिर शुरुआत ऐसे ही करिएगा, 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस दिखाना, फिर दूसरी बार 2 ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंस दिखाना, और फिर जो उसकी फाइनल फॉर्मेलिटी हो वो क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है उसके अंदर। ओके, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन लेट मी नो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन इन द ग्रुप। Okay, but I'm sure if you will try, you will be able to do it, and that is why I'm giving you. अगर बिल्कुल पूरा नया होता, then I would have not given you. But still, if you are not able to do it, let me know. I'll send the solution in the group. Okay? So this was about question number 9 and question number 10 homework. Now the last question remains, which is question number 12. So let's read question number 12. Question number 12 says, उसमें भी एक फिगर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. ये वर्ड आ चुका है पिछले वीडियो लेक्चर में। Circumscribe a circle means सर्कल अंदर है ट्राइंगल के। Of radius 4, so सर्कल की रेडियस 4, such that the segments BD and DC, अब यहाँ फिगर देखें, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल है, रेडियस उसकी 4 है। रेडियस मींस दिस वन, O से लेके D, यहाँ तो बोले O से लेके F, यहाँ तो बोले O से लेके E, ये सारे 4 है, रेडियस है। Such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 and 6. BD and DC are of the length 8 and 6. तो BD है 8 और ये है 6। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, फिगर भी है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, उसमें से एक साइड दी है, मतलब एक साइड के 2 टुकड़े दिए हैं, ये टुकड़ा 6, ये टुकड़ा 8। सो टोटल करें तो 8 + 6 14। सो इस साइड का तो पता है 14 है, बाकी ये 2 साइड्स ढूंढनी है आपको, कितनी कितनी है। ओके, तो 2 साइड्स अननोन है जिनको हमको ढूंढना है। अब देखें कैसे शुरुआत करते हैं हम। ये पूरा फिगर जो क्वेश्चन के अंदर दिया है उस पे अगर आप पहले थ्योरम 10.2 लगाएं तो क्या होगा, देखो ये पार्ट 6 है तो ये वाला पार्ट भी 6 होगा। क्यों? ये सर्कल देखो, ये बाहर वाला पॉइंट देखो, ये सर्कल, ये बाहर वाला पॉइंट, 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक ये एक ये, उसमें से एक पता है 6, तो दूसरा यहाँ 6 ही होगा, राइट? तो ये दोनों 6 6। अब क्योंकि ये 8 है इस साइड, तो वो भी 8 होगा, तो ये भी 8, तो ये 6 तो ये 6, ये 8 तो ये 8। अब बात रह गई सब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इनकी दोनों में से एक भी पता नहीं है,
लेकिन इतना जरूर पता है कि वापस थ्योरम 10.2 लगेगा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट दिस इज x, सो दिस वन इज ऑल्सो x। तो इस तरीके से पूरा फिगर रेडी हुआ। ओके, बार बार टारगेट याद रखना। व्हाट इज अवर टारगेट? वी वांट टू फाइंड दिस टू साइड्स। दिस साइड वी नो, हमको ये दो साइड्स ढूंढनी है, कितनी कितनी है। वैसे देखो ये दोनों साइड्स के दो दो टुकड़े हो रहे हैं। ये वाली साइड का एक टुकड़ा है 6, एक टुकड़ा है x। अगर x मिल जाए, मान लो x 10 मिले तो 6 + 10 16, तो पूरी साइड मिल जाएगी। यहां वाली साइड के भी दो टुकड़े हैं, 1 is 8, 1 is x। तो अगेन x मिल जाए, वैसे ये x और ये x सेम ही होगा। सो इफ दिस इज 10 तो ये भी 10 होगा, तो ये 10 + 8 18 बन जाएगा। सो ऑल द मूवी फुल पिक्चर depends on only this part x. If somehow we get this x, then our full sum is done. So our target will be to find out somewhere x कहां मिल जाए। ओके, सो कैसे करना है देखना। लिखने में थोड़ा सा लेंदी होगा, बट वेरी सिंपल इज दिस वन। दिस इज न्यूमेरिकल, नॉट जनरल सम। ओके, सी दिस। I have written पार्ट्स में समझिएगा। AB = x + 8। AB यानी ये साइड, एक टुकड़ा 8, दूसरा टुकड़ा x, तो ये साइड हुई 8 + x। फिर BC नीचे की साइड 6 + 8 14 गिवन है। तीसरी साइड AC, एक टुकड़ा 6, एक टुकड़ा x, सो 6 + x, सो 3 साइड हो गई। अब क्लास 9 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला √s, s - a, s - b, s - c, उसका यहाँ उपयोग करके इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे हम। ओके, तो उसको एरिया ढूंढने से पहले s ढूंढना पड़ता है। ABC तो 3 साइड होती है, वो तो ये रही, पहले s ढूंढना पड़ता है। तो s का भी फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, a + b + c / 2, तीनों साइड का प्लस / 2। तो सबसे पहले मैंने s ढूंढा, तीनों साइड का प्लस, मतलब x + 8 + 14 + 6 + x, सबका प्लस / 2। तो सबका प्लस करेंगे तो ऊपर आएगा 28, 8 + 14 22 + 6 28, सो 28 x + x 2x, सो 28 + 2x / 2। अब ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा और वो नीचे के 2 के साथ कट हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो वो 28 था वो क्या बन जाएगा 14, और 2x था, that will become only x. So answer of S is 14 + x. Okay, 14 + x, ये है S। अब लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला। So area = √s, s - a, s - b, s - c. You know this formula. Now put the values √ सबसे पहले s, what is s? 14 + x, so 14 + x. Second bracket s - a, so s is 14 + x minus a, a मतलब ये वाली साइड, इसको माइनस करना है, तो दोनों माइनस बनेंगे, so -x - 8. Next bracket s - b, s is 14 + x and b is 14, so 14 + x - 14. Third bracket is s - c, s is 14 + x minus c is 6 + x, दोनों को माइनस मिलेगा, so 14 + x - 6 - x। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 + x तो 14 + x रहेगा, इस ब्रैकेट में x और x कैंसिल हो जाएंगे, so 14 - 8 सिर्फ 6 बचेगा। इस ब्रैकेट में 14 and 14 will get cancelled, so only x बचेगा। इस ब्रैकेट में x and -x will get cancelled, so 14 - 6 8 will remain। अब आपको 9th याद होगा, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए वो तो बाहर आ जाते हैं, नहीं निकले वो अंदर रहते हैं। तो बाहर सिर्फ क्या निकला 4, कहां से आया ये 4? अंदर देखिए एक 6 था, है ना, 6 को अगर आप तोड़े तो क्या मिलता है 2 × 3, 6 को तोड़े तो
और 8 को तोड़े तो 2 into 4 मिलता है ना। तो एक 2, क्योंकि यहां जोड़ी बन रही है तो बाहर आ जाएगा एक 2। फिर ये 4 जो है वो भी 2 into 2 है, तो 2 की एक और जोड़ी बनी, तो 2 एक बार और बाहर आएगा, तो 2 2 बार बाहर आएगा। सो बाहर बनेगा 2 2 4, तो बाहर आएगा 4। एक कौन रहेगा सिर्फ अंदर 3, सो अंदर 3 रहेगा। बाकी ये तो है ही अंदर, x भी है, 14 प्लस x भी है, ये तो बाहर आ नहीं सकते। बस ये फाइनल आंसर किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमको ढूंढना नहीं था, बट इससे हमको वो x मिलेगा। सो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसी ट्राइंगल का एरिया दूसरी तरीके से ढूंढना है। हमने अभी कौन सा तरीके से ढूंढा, हेरोन्स फॉर्मूला। अब हम दूसरे तरीके से, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे ढूंढेंगे। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही ट्राइंगल के एरियाज, तो उससे हमको x मिल जाएगा। तो अब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जाते हैं, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जाने के लिए पूरे ट्राइंगल का सीधा नहीं मिल जाएगा, 3 टुकड़े बनेंगे। देखो पूरे ट्राइंगल को ध्यान से देखना, 3 टुकड़े हैं, एक ओबीसी, ओ बी एंड सी, मतलब एक ये हिस्सा मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, दिस वन, एक ये हिस्सा है। ऐसे ही दूसरा यहां पे दिस वन, और तीसरा यहां पे दिस वन। 3 हिस्से, इन तीनों के एरियाज इफ वी फाइंड इट आउट एंड इफ वी देन ऐड ऑल 3 एरियाज, then we get the total area. Okay, so this is what our target will be now, to find 3 different parts and then to add them. So first of all, this part OBC, if I apply the formula area of OBC, half into base into height, so half is half. What is base? This one, OBC. Base is 6 plus 8, 14. And how much is height? Height is this one, ये वाला OD, जो है 4। कैसे चला पता? 4 क्वेश्चन में गिवन था, रेडियस 4 है। So half into 14 into 4, half into 14 into 4, कट करेंगे तो आंसर will be 28। ऐसे दूसरा ट्राइंगल, ये वाला, so half into base, base है x plus 8, तो half into x plus 8, ये रहा यहाँ पे, into height, height तो वापस से 4 ही है, तो वापस से कट करेंगे तो ये 2 2 4 कट हो जाएगा, बाकी बचा एक 2, और ब्रैकेट में 8 plus x, बाहर 2, अंदर 8 plus x, दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 16 plus 2x। ऐसा ही तीसरा ट्राइंगल, ये वाला, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है x प्लस 6, तो हाफ इंटू x प्लस 6, और हाइट तो वापस 4, सो हाफ इंटू x प्लस 6, हाइट तो वापस से 4, वापस 2 2 4 कट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 12 प्लस 2x। आंसर इज 12 प्लस 2x। तो तीनों टुकड़े मिल गए, दिस वन दिस वन दिस वन। अब तीनों को प्लस करें, देन यू विल गेट द टोटल ट्राइंगल। सो तीनों को प्लस करो, कौन कौन से तीनों? 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। If you add all 3, you will get final answer 56 plus 4x। कैसे? 28 और 12 40, 40 और 16 56, and 2x plus 2x 4x। So area of the main big triangle, it is 56 plus 4x। Give this equation number 2। अब इक्वेशन नंबर 1 कहां था? ये रहा, हेरोन्स फॉर्मूला से ढूंढा था आंसर। किस चीज का आंसर था? वो भी बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया था। इक्वेशन नंबर 2 में जो आंसर आया, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो द एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। सो बोथ मस्ट बी सेम। सो फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर किया दोनों को, यहां आंसर था 4 अंडर रूट दिस दिस दिस, यहां आंसर है 56 प्लस 4x।
तो दोनों को बीच में इक्वल टू की साइन लगा दी। अब बस इसको सॉल्व करें तो x मिल जाएगा। तो पहला स्टेप, राइट हैंड साइड पे 56 प्लस 4x है, वहां से 4 कॉमन आ सकता है। 56 के पास भी 4 है और 4x के पास तो 4 है ही। सो वहां से अगर 4 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x बचता है। 14 4 आर 56, तो राइट हैंड साइड पे 14 प्लस x बचेगा, और जो वो 4 कॉमन लिया था वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी 4 पड़ा है, सो बोथ 4 विल गेट कैंसल आउट। नेक्स्ट स्टेप, दिस वन, दोनों साइड स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो बचेगा 3x 14 प्लस x, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर लग जाएगा 14 प्लस x द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अब ये ब्रैकेट एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहां है 14 प्लस x द होल स्क्वायर और यहां भी है 14 प्लस x, तो एक बार ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा सिर्फ 3x, और राइट हैंड साइड पे अभी भी एक बार ब्रैकेट रहा 14 प्लस x, सो 3x इक्वल्स टू 14 प्लस x। अब इस x को इस साइड लेके आओ तो माइनस बन जाएगा, सो 3x माइनस x इज 2x, सो 2x इक्वल्स टू 14। अब 2 को वहां लेके जाओ, सो फाइनल आंसर ऑफ x इज 7। इतनी लंबी जोड़ी प्रोसेस करने के बाद वी गॉट x। अब x मिल गया, देन आवर जॉब इज डन। क्या फाइंड करना था हमको? ये साइड और ये साइड, AB और AC, ये दो साइड्स ढूंढनी थी। तो आपको पता था AB का एक पार्ट तो पता था कि 8 है, ये x मिल गया 7, तो 8 प्लस 7, AB का आंसर कितना बन गया 15। और जो ये साइड ढूंढनी थी 6 प्लस x, x तो मिल गया कितना 7, तो 6 प्लस 7 13। सो जो दो साइड्स हम ढूंढ रहे थे दिस टू, इट इज 15 एंड 13। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। Very easy but a bit lengthy. Okay, so when you write it and practice it, you will get it. Not a big problem. So with this, we complete this exercise. Also the chapter also. As I said, सिर्फ 9, 10, 12 बाकी थे. So I explain you 9 I have done it. 10 almost 80-85% is same. So it's your homework. And 12 we have also done it. So with this, we wind up this exercise and this chapter also. So dear students, during this lockdown period and school time, totally from my side, we have completed 4 chapters. Probability, that is chapter number 15. Statistics, that is chapter number 14. Construction, that is chapter number 11. And circles, which is chapter number 10. So from my side, 4 chapters are done. Okay, so I hope it's a time of homework, so you must send me 4 chapters homework as soon as possible. Do not forget to send the homework. So even after we are doing each and every sum, हम एक सम करते हैं, हम देखा होगा हर एक्सरसाइज का हर सम करते हैं। We are not doing like this कि एक टॉपिक शुरू किया, that okay चलो ये है टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमने 2 सम किए, रिमेनिंग यू डू इट। पूरी एक्सरसाइज आप कर लो, डाउट हो तो मुझे पूछो, फिर वापस दूसरा टॉपिक उठाया, वापस 2 किए, रिमेनिंग यू डू इट। नो, वी आर डूइंग ईच एंड एवरी सम ऑफ द फुल चैप्टर, all exercises, all sums, because you can do the similar type of sums, but just by giving 2-3 examples you cannot solve all the sums. तो मैंने भी कर दिया होता 10.2 में, मैंने आपको 2-3 बता दिए होते, बोला होता बाकी 8-10 आप कर लो, but that is not the way. And why I am telling you this, that because even I am doing so much of hard work and giving you all sums, then at least you must also do the same hard work, and you should also solve all the sums, not 2-3 samples. Okay, so I hope you understand what I am saying. So with this, we wind up today's session and 4 chapters. Next time when we are going to meet in the next video lecture, we will start 5th chapter from my side. Till the time, thank you so much for listening to this video lecture, and have a very good day. Take care of yourself. Stay home,
Stay safe. Thank you.